बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 5 and it's a period of English language teaching. It's the second video of week number 12. These topics to be reviewed, which we had studied briefly in our online classes. Today जो है हम इन टॉपिक्स को रिव्यू करेंगे जो कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ब्रीफली जो हैं इनको पढ़ चुके हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एन असेसमेंट विल बी गिवन यू एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस असेसमेंट यू कैन डू द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। नाउ कम टू द टॉपिक्स डेट व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, जुमला क्या है, जुमला किसे कहते हैं। आई हैड रिटन one definition in your content that a sentence is a group of words। एक जुमला जो है वो वो अल्फाजों का मजमूआ होता है that expresses a complete thought, जो मुकम्मल मफहूम जाहिर करता है। It means a set of words having complete sense is called sentence। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल मफहूम रखता हो जुमला कहलाता है। Example sentence which are in your content solution that I have many books, children are playing cricket, the moon shines at night, we help the poor, he goes to school. There are 5 sentences examples in your content. You can write another sentences in your examples. These topics we had studied in our online classes briefly जो है हम इन topics को अपनी online classes में पढ़ चुके हैं। What is a sentence? A sentence is a group of words। एक जुमला जो है वो अल्फाजों का एक ऐसा मजमूआ होता है that expresses a complete thought, जो कि एक मुकम्मल मफहूम को जाहिर करता है। Now come to exercise number 4 पेज नंबर 189। This is the copy work। exercise number 4 पेज नंबर 89 जो है ये आपका कॉपी वर्क है जो कि आपने कॉपी में करनी है। आई एम रीडिंग द एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 189। गिव आंसर टू द फ्लोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने हैं। आपके ये जो आंसर हैं या तो ये पॉजिटिव में हो सकते हैं या फिर नेगेटिव में भी हो सकते हैं। इट्स अप टू यू। आर यू नॉट वेल? नो आई एम नॉट वेल। हैव यू नॉट रिटन इन योर नोटबुक? नो आई हैव नॉट रिटन इन माई नोटबुक। डोंट यू लाइक टू प्ले विद अस? नो आई लाइक टू प्ले विद यू। वॉज नॉट राशिद प्रेजेंट yesterday? Yes, Rashid was not present yesterday. Haven't you brought your drawing book along? No, I haven't brought my drawing book. Can't you work this easy sum? No, I can work this easy sum. Isn't he deaf? No, he isn't deaf. Won't you give me your book? No, I won't give you my book. Didn't you see him playing there? No, I didn't see him playing there. Isn't it a nice weather today? No, it's a nice weather today. This is the exercise number 4 of sentences. Sentence which is copy work. You have to do this exercise in copy. Now come to the kinds of sentences. जुमलों की कितनी अक़साम होती हैं? There are 5 kinds of sentences। जुमलों की 5 अक़साम होती हैं। Number 1 is interrogative sentence, number 2 declarative sentence, number 3 exclamatory sentence, number 4 imperative sentence and number 5 is negative sentence. Interrogative means सवालिया जुमले। It is used for asking questions। ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। This type of sentences contains questions। इस तरह के जो जुमले होते हैं वो क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होते हैं। एंड इट बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब, जो कि किससे स्टार्ट होते हैं? एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और विद अ क्वेश्चनिंग वर्ड या किसी भी क्वेश्चन वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं।
Now come to the exercise number 1, page number 190. This exercise also is copy work. Sentence. Exercise number 1, page number 190. Number 1, ask a boy what he is eating. Question frame interrogative sentence as instructed. Interrogative sentences को आपने फ्रेम करना है. Ask a boy what he is eating. बॉय से पूछे कि वो क्या खा रहा है. इसका क्वेश्चन बनाने हैं, इन तमाम सेंटेंसेस के क्वेश्चंस बनाने हैं. व्हाट आर यू ईटिंग. नंबर 2, आस्क योर फ्रेंड वेदर ही इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. आंसर, आर यू गेटिंग रेडी फॉर स्कूल और नॉट. नंबर 3, आस्क योर फ्रेंड व्हाट शी इज रीडिंग. अपनी फ्रेंड से पूछे कि वो क्या रीड कर रही हैं. आंसर, व्हाट आर यू रीडिंग. आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द टाइम. अब टाइम के बारे में क्वेश्चन पूछिए. आंसर, व्हाट टाइम इज इट. आस्क योर मदर इफ शी लाइक्स टी और कॉफी. अपनी मदर से पूछिए कि वो टी पसंद करेंगे या कॉफी. वुड यू लाइक टी और कॉफी. नंबर 6, आस्क योर फ्रेंड विच ईयर ही वाज बोर्न. अपने फ्रेंड से पूछें कि वो कौन से ईयर में पैदा हुए थे. इन विच ईयर यू वर बोर्न. आस्क हामिद द प्राइस ऑफ हिज कैप. हामिद से पूछें कि उसके कैप की कीमत क्या है. हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ योर कैप. नंबर 8, आस्क गोहर व्हाट टाइम ही प्रिपेयर्स हिज लेसन. गोहर से पूछें कि वो अपना लेसन जो है किस टाइम प्रिपेयर करता है. व्हाट टाइम डू यू प्रिपेयर योर लेसन. आस्क योर फ्रेंड अ क्वेश्चन अबाउट द वेदर. अपने फ्रेंड से पूछें वेदर के बारे में क्वेश्चन पूछिए. हाउ इज वेदर टुडे. आस्क योर फ्रेंड व्हाट हर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर. अपने फ्रेंड से पूछें कि उसके फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स कौन से हैं या क्या हैं. व्हाट्स योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स. आस्क राशिद इफ ही विल गो आउट फॉर अ वॉक विद यू. राशिद से पूछिए कि क्या वो आपके साथ वॉक पर जाएगा. विल यू गो फॉर अ वॉक विद मी. क्या मेरे साथ वॉक पर जाएंगे. नंबर 12, लास्ट, आस्क अबाउट द नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास. अपनी क्लास में बॉयज की तादाद के बारे में बताइए. हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास. दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 1, interrogative sentence, copy work. This is the copy work. Now come to the declarative sentence. Declarative sentence क्या होते हैं. It is a sentence in a form of a statement. ये एक ऐसा जुमला होता है जो बयान की सूरत में होता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है हमें कोई भी बयान के बारे में कोई भी बयान देते हैं किसी के बारे में या खबर देते हैं. A sentence of statement gives us some sort of information, statement or description with affirmative or negative sense. हमें कोई इतला या कोई खबर. A sentence of statement gives us some sort of information, statement or description with affirmative or negative sense. हमें कोई इतला या खबर जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है हमें कोई इतला या खबर फराहम करते हैं जो या तो अफर्मेटिव की सूरत में हो सकती है या फिर किसी निगेटिव की सूरत में भी हो सकती है. जस्ट लाइक अगर हम अफर्मेटिव की बात करें अफर्मेटिव की बात करें तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी लव पाकिस्तान. नंबर 1 सेंटेंस एग्जाम्पल जस्ट लाइक वी लव पाकिस्तान. दिस इज द अफर्मेटिव सेंस. दिस इज द सेंटेंस इन अफर्मेटिव सेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो या तो किसी भी नेगेटिव या अफर्मेटिव में भी जो है स्टेटमेंट दे सकते हैं. वी लव पाकिस्तान, दिस इज द अफर्मेटिव स्टेटमेंट. नाउ कम टू द नेगेटिव स्टेटमेंट. डू नॉट लव द एनिमीज of Pakistan. This is the sentence in negative statement. So declarative sentence gives a statement. Declarative sentence जो है वो statement जो देते हैं या तो वो affirmative में भी दे सकते हैं और negative में भी दे सकते हैं. Now come to the exercise number 1, page number 192. This is exercise is also copy work. Now come to the exercise. फ्रेम डिक्लेरेटिव सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड. डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आपने फ्रेम करना है. नंबर 1 है से समथिंग अबाउट द वेदर. एलिफेंट्स के बारे में कुछ बताइए. एलिफेंट्स आर द बिग एनिमल. एलिफेंट्स जो हैं वो क्या हैं, बिग एनिमल हैं. से समथिंग अबाउट अ काउ. काउ के बारे में एक स्टेटमेंट दीजिए. काउ इज अ यूजफुल एनिमल. काउ क्या है, एक यूजफुल एनिमल है. स्टेट समथिंग अबाउट रोजेज. रोजेज के बारे में कुछ स्टेट कीजिए. एवरीवन लाइक्स रोजेज. हर कोई जो है वो रोजेज लाइक करता है. स्टेट अ फैक्ट अबाउट वाटर. वाटर के बारे में एक फैक्ट बताइए. वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ. वाटर जो है वो लाइफ के लिए नेसेसरी है. मेक अ स्टेटमेंट अबाउट क्रिकेट. क्रिकेट के बारे में एक स्टेटमेंट दीजिए. क्रिकेट इज एन इंटरनेशनल गेम. क्रिकेट क्या है, एक इंटरनेशनल गेम है. स्टेट अ फैक्ट अबाउट मैंगोज. मैंगोज के बारे में एक फैक्ट बताइए. मैंगो
एवरीवन लाइक्स मैंगोज, हर कोई जो है वो मैंगोज लाइक करता है। एंड द सेकंड मे बी इज मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट, मैंगो जो है वो किंग है फ्रूट का। नंबर 7, मेक अ स्टेटमेंट अबाउट योर फ्रेंड्स हेल्थ, अपनी फ्रेंड्स की हेल्थ के बारे में एक स्टेटमेंट दीजिए। मेक माई फ्रेंड्स हेल्थ इज परफेक्ट। नंबर 8, मेक अ स्टेटमेंट अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में एक स्टेटमेंट दीजिए। पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, पाकिस्तान सन 1947 को वजूद में आया। ठीक है, दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ imperative exclamatory sentences. Exclamatory sentences. Now come to its definition, that it expresses strong feelings और emotions, ये strong feelings को या emotions को जाहिर करता है। strong feelings शदीद जज्बे को जाहिर करता है या किसी भी एहसास को जाहिर करता है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म होता है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क? दिस वन द सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म होते हैं। नाउ टाइप ऑफ सेंटेंस कंटेन्स एक्सप्रेशंस, इस तरह की जो जुमले होते हैं, इस किस्म के जो जुमले होते हैं वो एक्सप्रेशंस पर कंटेन होते हैं, किसी भी एहसास पर मुश्तमिल होते हैं। ऑफ सडन एंड फोर्सफुल फीलिंग्स, इस किस्म के जुमलों में फौरी और शदीद जज्बे का इजहार होता है। सच एज, जैसा कि जॉय, खुशी के मौके पे हम कोई अल्फाज कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किए जाते हैं। सोरो मीन्स ग्रीफ, मतलब ग्रीफ मीन्स गम के मौके पे। एंगर मीन्स गुस्से की हालत में। सरप्राइज हैरत के वक्त। फेयर खौफ के वक्त। एंड प्रेस और किसी की भी तारीफ के वक्त जो हम अल्फाज बोलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो एक स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं। वी कैन चेंज इट इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जो है किसी भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट एंड हाउ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हम व्हाट एंड हाउ इन वर्ड्स का यूज करते हैं। व्हाट का यूज कहाँ होगा? बिफोर एन एडजेक्टिव, किसी भी ऐसे एडजेक्टिव से पहले, विद अ नाउन, जो कि जिससे पहले जो नाउन के साथ हो। बिफोर एन एडजेक्टिव विद अ नाउन, ऐसे नाउन से ऐसे एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो नाउन के साथ हो, जिसमें नाउन की बात की जा रही हो। नाउन मीन्स नेम, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी भी शख्स, जानवर, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, जहां पर नाउन की बात की जाएगी वहां पर वर्ड का यूज किया जाएगा, और जहां पर नाउन की बात नहीं की जाएगी, मीन्स प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो वहां पर हाउ का यूज किया जाएगा। बिफोर एन एडजेक्टिव विदाउट अ नाउन। आई एम राइटिंग हेयर सम सेंटेंसेस, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ जिसकी हेल्प से जो है आपको सेंटेंस जो है क्लियर हो जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी, दिस इज द प्रोनाउन। बात किसकी हो रही है यहाँ पर? प्रोनाउन की। अगर प्रोनाउन की बात की जाएगी तो हाउ का यूज किया जाएगा, और अगर नाउन की बात की जाएगी तो व्हाट का यूज किया जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी लकी, आप बहुत लकी हैं। इस सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दिस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। सो अगर बात की जाएगी प्रोनाउन की, नाउन की बात नहीं की जाएगी, प्रोनाउन की बात की जाएगी, तो हम हाउ का यूज करेंगे। हाउ, देन वी विल पुट द adjective. What is the adjective in this sentence? Lucky. How lucky
अब बात किसकी हो रही है? यू आर, हाउ लकी यू आर। एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी विल पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सेंटेंस के लास्ट में हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क को पुट करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई हाउ की। अब आ जाए व्हाट। व्हाट का यूज वहां होगा जहां पर नाउन की बात की जाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इज cow is a यूजफुल एनिमल। काउ क्या है? एक यूजफुल एनिमल है। किसकी बात हो रही है? काउ। काउ मीन्स एनिमल नेम, मीन्स नाउन की बात हो रही है। तो जब हम नाउन की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? व्हाट। व्हाट के जब हम बात करेंगे तो व्हाट के साथ पहले हम एडजेक्टिव से पहले आ यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे, आ या फिर एन, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है यूजफुल। यू इज वोविल later but is not the sound of vowel, so we will put a. What a useful animal, what a useful animal cow is. Then we will put the exclamation mark. So I think you have got the uses of how and what. So what will be used with a noun and how will be used before an adjective without a noun. जहां पर नाउन की बात की जाएगी वहां पर what का यूज होगा, और जहां पर नाउन की बात नहीं की जाएगी वहां पर how का यूज होगा। I think you have got the difference. Now come to the exercise number 1, page number 194. This is exercise is also copy work. I'm reading the examples. Exercise number 1, number 3, number 1 and 2 are short in your book. So number 3 is you sing very well. How well you sing? We will, you is pronoun, so we will put here how. It was a splendid performance. कितनी what a splendid performance. Performance noun है, ठीक है, इसलिए नाउन की बात हो रही है तो हमने क्या यूज करा? व्हाट। ही इज वेरी ब्रेव। ही इज प्रोनाउन, सो वी विल यूज हाउ ब्रेव ही इज। यू आर वेरी फॉर्चुनेट। यू इज प्रोनाउन, सो वी विल यूज हाउ फॉर्चुनेट यू आर। शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। हाउ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस शी इज। शी इज प्रोनाउन, सो वी विल पुट हाउ। यू आर वेरी काइंड। यू इज प्रोनाउन, सो हाउ काइंड यू आर। Iron is very useful. Iron is noun, so we will put what. What a useful iron is. Number 10, Nabila is a gorgeous young lady. Nabila is a noun, person name, so we will put the what. What a gorgeous young lady Nabila is. Number 11, you have a lovely smile. You is a pronoun, so we will put how a lovely smile you have. Number 12, he is very generous. He is pronoun, so we will put how generous he is. Number 13, she is very knowledgeable. She is pronoun, so we will put how knowledgeable she is. And the last number 14 is what a pleasant it was a pleasant surprise. So surprise is a noun, so we will put what a pleasant surprise. This exercise of एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये जो एक्सरसाइज थी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की थी। 3 काइंड्स जो हैं वो हम रिव्यू कर चुके हैं। नाउ कम टू द 4th काइंड ऑफ सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इट एक्सप्रेसेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट। ये किसी एक एक्सप्रेस करता है एक कमांड को या फिर एक रिक्वेस्ट को। कमांड मीन्स ऑर्डर। कमांड मीन्स ऑर्डर। दिस सेंटेंसेस कंटेन्स डिजायर्स। इस तरह के जो जुमले होते हैं ये डिजायर्स पर कंटेन होते हैं। दिस डिजायर्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर। ये जो डिजायर्स जो हैं ये किसकी फॉर्म में हो सकती हैं? या तो किसी ऑर्डर की फॉर्म में हो सकती हैं, रिक्वेस्ट की सूरत में हो सकती हैं, या फिर किसी भी एडवाइस की सूरत में हो सकती हैं। या तो हम इसमें
या तो हुक्म दे रहे होते हैं या फिर दरख्वास्त कर रहे होते हैं किसी भी बात की, या फिर किसी हिदायत की सूरत में भी जो है इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कीप योर सिटी क्लीन, कीप योर सिटी क्लीन, this is the imperative sentence, keep your city clean. And another sentence is help the poor, ठीक है। An imperative sentence is without subject, एक imperative sentence जो होता है वो एक subject के बगैर होता है, means it does not start with the subject, it starts with the first form of verb, ये verb की first form से start होते हैं, इसमें subject नहीं होता। Another case, दूसरे केस में we want to check और stop, हम जो है किसी को stop करना चाहते हैं, किसी को किसी काम से रोकने के लिए, someone from doing something, किसी को किसी काम से रोकने के लिए जो है वो stop करना चाहते हैं। In that case we use do not or don't. Just for example, don't is the short word of do not. Don't pluck the flower, don't pluck flowers. Don't make a noise. This is also called imperative sentence, ठीक है, जिसमें कमांड दी जा रही हो या फिर कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, imperative sentences कहलाते हैं। Now come to the exercise number 1, पेज नंबर 196. This exercise is book work. ये एक्सरसाइज आपने बुक में सॉल्व करनी है, बाकी तमाम काइंड्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपका कॉपी वर्क हैं, ठीक है। आपने ये एक्सरसाइज बुक में सॉल्व करनी है। आई एम शोइंग यू द पेज नंबर 196. जस्ट सोल्यूशन हैज बीन गिवन इन योर कंटेंट. बाय द हेल्प ऑफ द सोल्यूशन यू हैव टू फिल दिस पेज, you have to fill this page in your book. In this picture what the teacher is commanding, ठीक, इस पिक्चर में जो है वो टीचर क्या कमांड दे रही है स्टूडेंट को, ये आपने यहाँ पर मेंशन करना है. लुक एट दिस पिक्चर. What the teacher said? What the teacher said? Another picture, the boy is opening the window. So teacher, what the teacher command? Please open the window. Second picture, go to the board. Third picture, draw a tree on the board. Number 4, shut the window. Number 5, stand there. Number 6, look at down. This is the book work. Just this exercise is book work. All rest of exercises are copy work. सिर्फ ये एक्सरसाइज आपकी बुक वर्क है, बाकी तमाम एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपकी कॉपी वर्क हैं. नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस विद नॉट और नो. एक ऐसा जुमला जो नॉट और नो पर मुश्तमिल हो, इस कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस. एक नेगेटिव जुमला कहलाता है. सिंपल बात है कि जिन जुमलों में नोट या नो का यूज हो वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 197. दिस इज कॉपी वर्क. नंबर 1 इज दीज मैंगोज आर स्वीट. आर इज द मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, सो वी विल पुट नोट. दीज मैंगोज आर नॉट स्वीट. नंबर 2, इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट. वॉज रेनिंग. वॉज इज द helping verb of past continuous. This is the sentence of past continuous, so we will put not after the helping verb was. It was not raining last night. Number 3, Abdul is working hard. Abdul is not working hard. This is the sentence of present continuous, so we will put is not. Number 4, Jamal has eaten his dinner. Has eaten. This is the sentence of present perfect, so we will put has not. Jamal has not eaten his dinner. Number 5, you look tired. You look tired. This is the sentence of present indefinite, so we will put does not and do not. present indefinite के sentences में negative बनाते वक्त do not या does not का इजाफा करते हैं. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस इंक्लूड किया गया है तो डज नॉट का यूज किया जाता है, और अगर नहीं है तो डू नॉट का यूज किया जाता है. सो
you don't look tired, or you can write you do not look tired. Number 6, my uncle lives in Lahore. Leaves. This is the sentence of present indefinite. Leaves. So we will put does not. My uncle does not live in Lahore. He played for 1 hour. Played. This is the sentence of past indefinite, second form of the verb. जब past indefinite के sentence में जो है किसका यूज किया जाता है? did not. और जब did not का यूज किया जाता है तो verb अपनी फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाता है. He did not play for 1 hour. Write down the sum. Don't write down the sum. Sit down. Don't sit down. This is the imperative sentence. We will make it in negative. The thief escaped. Second form of the verb. So this is the sentence of past indefinite. The thief did not escape. Number 11. Some people like curry and rice. Like, first form of the verb. So this is the sentence of present indefinite. Some people do not like curry and rice. Number 12. I slept well last night. Slept, second form of the verb. So this is the sentence of past indefinite. I did not sleep well last night. Number 13. I can see the new moon. Can is the verb, main verb of the sentence. I cannot see the new moon. Number 14. Farah speaks clearly. Speaks, first form of the verb plus s या es. So Farah does not speak clearly. We will put does not, and s or es will be removed in the first form of the verb. Number 15. I have some money in my pocket. I have some money in my pocket. This is the sentence of present indefinite. I don't have some money in my pocket. We will put do not or don't. I do not have some money, या I don't have some money. So there are 5 kinds of sentences which we have reviewed. Number 1 is interrogative sentence, number 2 is declarative sentence, number 3 is exclamatory sentence, and number 4 is imperative sentence, and the number 5 is negative sentence. Now come to the composition work. कंपोजिशन वर्क जो है सेकेंड सेमेस्टर फाइनल टर्म में आपको नहीं करवाया गया है. जो वर्क आपका सेकेंड सेमेस्टर मिड टर्म में वर्क कंपोजिशन वर्क है, वही वर्क आपका कंटेंट में इंक्लूड है. सो पैराग्राफ, एप्लीकेशन एंड पिक्चर कंपोजिशन, ऑल दिस वर्क इज इंक्लूड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, जो कि आपको सेकेंड सेमेस्टर फाइनल टर्म में नहीं करवाया गया है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर मिड टर्म में जो वर्क करवाया गया है यही वर्क आपका इंक्लूड है. नाउ कम टू द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन का पैटर्न हर बार आपको बताया जाता है कि एप्लीकेशन का पैटर्न में जो है एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट की जाती है. सबसे पहले रेफरेंस दिया जाता है. सबसे पहले तो एप्लीकेशन की डेफिनेशन पे आ जाइए. एन एप्लीकेशन इज अ रिक्वेस्ट टू सम अथॉरिटी फॉर ग्रांट और सैंक्शन ऑफ समथिंग. दरख्वास्त में किसी बड़े मर्तबे वाली हस्ती से कोई इजाज़त या मंजूरी अता करने की गुजारिश की जाती है. एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. सैल्यूटेशन, कंटेंट एंड सब्सक्रिप्शन. जिस हस्ती को को आप जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, उसका जब आप रेफरेंस देंगे तो वो किससे स्टार्ट करेंगे? सैल्यूटेशन से. प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखें तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल. जगह का हवाला देंगे प्राइड कैरियर स्कूल. जमानाबाद लांडी कराची. नाउ कम टू द सब्जेक्ट. किस टॉपिक पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट बताएंगे आप, वो टॉपिक बताएंगे. सो कम टू द टॉपिक. परमिशन टू अटेंड मैरिज.
मैरिज अटेंड करने के लिए जो है छुट्टी की दरख्वास्त। नेक्स्ट, रेस्पेक्टेड सर और मैडम, यू कैन राइट with due regards, with due respect. This is the salutation part, and this is called the content, and the last is yours obediently. Here you put your name, class, then date, and this is called the subscription. एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं. दिस वन इज कॉल्ड सैल्यूटेशन, दिस वन कंटेंट, एंड दिस वन इज सब्सक्रिप्शन. Now come to the application which is in your second semester midterm work. Write an application to the principal for permission to attend the marriage of elder brother. To the principal, Bright Career School, Zamanabad, Landi, Karachi. The salutation and the subscription must be punctuated. Salutation और subscription जो है वो punctuated होनी चाहिए. Means all the commas put the pattern. Full stop and commas placed correctly, properly in the pattern of application. Now come to the application. With due regards, it is to inform you that the marriage ceremony of my elder brother will be held at Lahore on 25th of this month. Therefore, kindly grant me leave for 6 days so that I may attend the ceremony. I shall be thankful to you for this act of kindness. This is the application. Now come to the paragraph. Paragraph. What is paragraph? What is a paragraph? Paragraph किसे कहते हैं? A paragraph is a piece of writing. एक paragraph जो है वो एक writing एक piece होता है that consists of a series of sentences, जो कि sentences की series पर मुश्तमिल होता है. Just as a sentence is combination of words, जिस तरह से एक sentence जो होता है वो words का combination होता है, in the same way, बिल्कुल इसी तरीके से a paragraph is the combination of sentences. एक paragraph जो है वो sentences का combination होता है. Now come to the paragraph. Importance of education. Education is very necessary for all to be successful and to become better person. Education जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम कामयाब होने के लिए and to become better person, और एक better person बनने के लिए. It enhances our knowledge, ये हमारे knowledge को बढ़ाता है. Develops confidence, ये हमारे में confidence develop करता है. And helps to discover our skills, और हमारी skills को, हमारी सलाहियत को discover करने में help करता है. एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ एंड वुमेन. एजुकेशन जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत अहम है. दे हैव एन एसेंशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी एंड स्मार्ट सोसाइटी. इन दोनों का जो है वो एक हेल्दी और एक स्मार्ट सोसाइटी की तरक्की में एक नुमाया किरदार होता है. एजुकेशन परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिटरमाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. एजुकेशन जो है वो किसी भी कौम की तरक्की के लिए जो है एक अहम किरदार अदा करता है. अ फेमस कोटेशन अबाउट द एजुकेशन इज़, एक मशहूर कहावत है एजुकेशन के बारे में. अ मैन विदाउट एजुकेशन इज़, एक शख्स बगैर तालीम के ऐसा है. इस लाइक, ऐसा है आ बिल्डिंग विदाउट फाउंडेशन, एक इमारत बगैर बुनियाद के. दिस इज़ द पैराग्राफ. नाउ कम टू द पिक्चर कंपोजिशन. पिक्चर कंपोजिशन. पिक्चर कंपोजिशन इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ विजुअल प्रॉम्प्ट. एक पिक्चर कंपोजिशन जो है वो एक विजुअल प्रॉम्प्ट का डिस्क्रिप्शन होता है. विजुअल प्रॉम्प्ट मीन्स जो चीज़ नज़र आ रही होती है उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसका एक बयान होता है. द फोकस इज़ ऑन द थिंग्स प्रेजेंट इन द पिक्चर, जिसमें जो चीज़ों को जो फोकस किया जाता है वो पिक्चर में जो प्रेजेंट होती है उनको फोकस किया जाता है. नाउ कम टू द बुक वर्क. पेज नंबर 241. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. This one picture is given you in your content solution. You have to do this one assignment.
1 2 3 4 last one picture. Now come to its solution. Question number 1 is list the things you see in the picture. उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आप पिक्चर में देख रहे हैं. नंबर 1 बर्ड, trees, man, bench, cat, bushes, grass, homes and flowers. Number 2 what kind of a scene is shown in the picture. पिक्चर में किस तरह का सीन दिखाया गया है. नेचुरल सीन. नंबर 3 what is the cat doing. The cat is sitting under the bench. Number 4 what are the bird and the man and what are they doing. The bird is on the tree and the man is sitting under the tree. Number 5 what kind of weather is it. The weather is sunny. Now we have reviewed all the that sentence, kinds of sentence, composition, in the composition, application, paragraph and picture composition. Now come to the assessment. This is the assessment number 2 which you have solved. Used for asking dash. Number 3 a sentence with not or no is called a dash sentence. Number 4 dash sentences ends with an exclamation mark. कौन सा सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क पर ख़त्म होते हैं. नंबर 5 a paragraph is a piece of dash. Number 6 an application is a dash to some authority. Number 7 a picture composition is a dash of a visual prompt. Number 8 in exclamatory sentence what is used dash a noun. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो व्हाट का यूज नाउन में नाउन के साथ किया जाता है या नाउन विदाउट नाउन किया जाता है. नंबर 9 इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ इज यूज्ड. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का यूज जो है वो नाउन के साथ किया जाता है या विदाउट नाउन किया जाता है. नंबर 10 लास्ट इज आ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स आ डैश. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो मेक्स करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 write the definitions with 2 sentence example. definitions लिखनी है 2 sentence examples के साथ.
Number 1 is sentence. Number 2 is declarative sentence. And number 3 is imperative sentence. There are 3 definitions: sentence, declarative sentence and exclamatory sentence. Now come to the question number 3. वाटर. वाटर के बारे में एक फैक्ट लिखी है. नंबर 2 इज मेक अ स्टेटमेंट अबाउट पाकिस्तान. पाकिस्तान के बारे में एक स्टेटमेंट दीजिए. नंबर 3 स्टेट अ फैक्ट अबाउट स्कूल्स. स्कूल के बारे में एक फैक्ट बताइए. एंड नंबर 4 इज say something about mother. मदर के बारे में कुछ बताइए. ये आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखने हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. पल for 15 days leave for performing umrah. 15 डेज लीव की आपने एप्लीकेशन लिखनी है. किस लिए? परफॉर्मिंग उम्रे के लिए, उम्रा अदा करने के लिए आपने छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है 15 दिन की. दिस इज द असेसमेंट नंबर 2. There are 5 questions in the second assessment. You will do this assessment, and by this assessment you can do the preparation of exam. So today's lecture winds up here. We will meet again with the new review. Next video will be related to the language portion and the revision of tenses. नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो टेंसेस का रिव्यू होगा उसमें, और लैंग्वेज पोर्शन का रिव्यू होगा. सो टुडेज लेक्चर वाइंड्स अप हियर. वी विल मीट अगेन विद द न्यू टॉपिक्स. सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.